Now I would like to request Honorable Chairman Bar Council of India to start the press meet. Thanking you all. And Namaskar, pranam. Good afternoon, everybody present here. On the occasion of this press meet convened by the Bar Council of India and also the KIIT University from Bhubaneswar, Odisha. Today we have with us our Honorable Chairman of the Bar Council of India, Sri Manan Kumar Misra ji, and also it is the galaxy of all the honorable lauded members of the Bar Council of India present on the dais, and also Secretary of the Bar Council of India, Mr. Anil Pradhan ji, and all the respected press persons, both from electronic print media present here, our co-vice chancellor of KIIT University joining with us, all the other respected ladies and gentlemen. It is a great pleasure on my part as a founder of KIIT and Peace to stand before you in the midst of the lauded members of the Bar Council of India and its chairman also, just to welcome you all. तो आप लोग सबको मैं पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोग अभी पार्लियामेंट चल रहा है, दिल्ली में बहुत कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तब भी आप लोग इतना संख्या में आए हैं। आरती साहब, हम लोग का प्रेस भाई बहन सभी जुड़ेंगे आते हैं। तो पहले आप सबको मैं बीसीआई तरफ से, मेरा तरफ से, कि विश्वविद्यालय का तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। नई साल का शुभेच्छा भी ज्ञापन करता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। वी आर हियर Honorable Chairman of the Bar Council of India, Sri Manan Kumar Misra ji, all the other respected members of the Bar Council of India, including the Secretary of the Bar Council of India. And you are all aware of that about the Bar Council of India, the statutory body, autonomous body created by the Parliament as per the Government of India Advocates Act 1961 for the promotion of and regulation of the entire legal education and legal professions in the entire country. And also another one body, BCI, through BCI Trust, Bar Council India Trust, that is also a registered body for the improvement of the research and social training, legal education, legal professions, etc. in the country. तो BCI ट्रस्ट एंड KIIT यूनिवर्सिटी दोनों मिलके एक नया प्रयास इंडिया में करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को परहैप्स जरूर पता है हम लोग का KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में जो भुवनेश्वर में है। मैं यहाँ बार बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, इतने आप लोगों को सबको पता है। विच started in a very humble beginning, now in the league of Institute of Eminence as declared by the Government of India. So situated in the Bhubaneswar with 30,000 students from Pan India and also from the 65 countries, spreading over 400 acres of land with 1.5 crore square foot built-up area. One of the most promising university. So in this context, as a founder of KIIT and Peace, KIIT is also another university exclusive for the tribal children in no fully residential, first of its kind in the entire world. As a founder of KIIT and Peace, it's my great pleasure and duty to express our thanks and gratitude not only to the Honorable Chairman of the Bar Council of India, to all the honorable members of the Bar Council of India and its trust
keeping faith on this university and also its founder and coming out with a very good joint collaboration, things which will be announced by the chairman very soon, just after me. तो मैं माननीय चेयरमैन जी को सब मेंबर यहाँ उपस्थित है एक साथ, मेरा भाग्य है से और मेंबर यहाँ पर उपस्थित है, चेयरमैन जी है, जितना भी मैं आभार व्यक्त करूँ वो कम होगा, इसलिए मैं इतना अच्छा प्रयास वो लोग सोचे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उड़ीसा में भुवनेश्वर में आए एंड हम लोग उसमें साथ दे रहे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। तो मैं चेयरमैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेंबर को भी मैं धन्यवाद का साथ आभार व्यक्त करता हूँ एंड मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि जो जॉइंट कोलैबोरेशन होगी नया चीज़ निकलेगा, जरूर ये नया चीज़ देश के लिए बहुत अच्छा होगा, लीगल प्रोफेशन के लिए, लीगल एजुकेशन के लिए एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली उड़ीसा स्टेट के लिए जरूर ये बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग BCI जो भी बोलेंगे, जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें संपूर्ण योगदान करेंगे और उसको अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज पहले बार कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हैज केप्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑन ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक अस। ये जो विश्वास रखे हैं चेयरमैन जी एंड सब मेंबर, तो विश्वास को जरूर हम लोग बजाय रखेंगे। आगामी दिन में एक विश्वास, एक आंदोलन होगा जिसका वजह से बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी will be jointly collaborated with the self-financing university or the any organizations for the betterment of the country and the society and particularly education, be it legal education, professional education, any education. तो इसलिए ये जो जॉइंट कोलैबोरेशन ये लोग सोचे हैं, हम कर रहे हैं, अभी अनाउंस करेंगे माननीय चेयरमैन जी, तो इसलिए मैं जितना भी बोलूँगी कम होगा। आप लोग भी सुन के जरूर आश्चर्य प्रकट करेंगे अभी जब चेयरमैन जी अनाउंस करेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे संभव हुआ, इन प्रैक्टिकली ये संभव हुआ एंड ये संभव बहुत अच्छा से एक दिशा देगा लीगल एजुकेशन को, प्रोफेशन को, सारा देश को, जो ऐसे भी काम हो सकता है। इसलिए जब एक विश्वास आता है, एक भरोसा आता है एक संस्था का ऊपर, एक आदमी का ऊपर, तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो भी अच्छा करे उसका साथ देना ये सबसे अच्छा काम होना चाहिए। तो आज एक बार मैं जो भी प्रेस भाई बहन यहाँ उपस्थित है, बोल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड इस सिलसिले में आज एक बार जो माननीय चेयरमैन जी है एंड BCI का जो सम्मानीय सब सदस्य हैं, सबको मैं आज एक बार आभार व्यक्त करते हुए मेरा वेलकम एड्रेस को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा founder of Congress, my honorable colleagues in the Bar Council of India, Vice Chancellor, University, Anil Kaligari, by Madam. सर प्लीज माइक ऑन, आवाज बढ़ाओ भैया। मीडिया पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ठीक है? हाँ ओके, हाँ बिल्कुल ठीक। Friends, you know, Bar Council of India is a statutory body created by Parliament under the Advocates Act 1961 to discharge the functions of regulating and promoting legal education and legal profession of the country. बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय को विनियमित करने और विधि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक संवैधानिक संस्था है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया थ्रू इट्स ट्रस्ट has taken the initiative to establish the Indian Institute of Law (IIL), a modern institute of law teachers
Academy, continuous legal education and research. This academy would primarily be for the teachers of law. ट्रस्ट के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ नामक एक आदर्श विधि शिक्षक अकादमी की स्थापना के लिए पहल की है। जैसा कि डॉक्टर समंता साहब ने कहा, यह संस्थान अधिवक्ताओं हेतु कंटिन्यूअस लीगल एजुकेशन और अनुसंधान रिसर्च के कार्यों का निर्वहन करेगा। The IIL would work in collaboration with Kalinga Institute of Industrial Technology, the famous deemed university at Bhubaneswar in the state of Odisha. IIL भारत के प्रसिद्ध डीम्ड विश्वविद्यालय कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसके तत्वावधान में काम करें। Friends, till date there is no training institute in law to cater to the needs for skill development of the law teachers and their pupils. In the Indian Institute of Law, the young teachers of law schools of India and advocates would enhance their expertise and professional skill and their commitment. आज तक विधि शिक्षकों और अधिवक्ताओं के कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विधि के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के माध्यम से विधि शिक्षक एवं युवा वकीलों को अपने कार्य कौशल में बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान काम करेगा। BCI Trust had earlier established the iconic institution for legal education, namely National Law School of India University at Bangalore in the year 1986, which continues to be the model law university of the country. This will be the first of its kind in the entire country, the present institution we are announcing today. Such institution was long contemplated by Bar Council of India and its trust. Bar Council of India Trust ने सन 1986 में बैंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी नाम से पहले संस्था की स्थापना की थी, जो आज भी देश में मॉडल लॉ यूनिवर्सिटी बनी हुई है। IIL पूरे देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। लंबे समय से हमारी काउंसिल इस तरह के संस्थान के बारे में सोच रही थी, बट द आइडिया ऑफ BCI could not be materialized earlier due to one or other reason. The Bar Council of India and its trust finally contacted Dr. Achyuta Samanta, Honorable Member of Parliament, a great visionary, academician and founder of KIT and GIS deemed universities, and after visiting both the campuses of KIT and GIS, our members of Bar Council of India decided and resolved to establish the Indian Institute of Law (IIL) at Bhubaneswar, Odisha, in collaboration with and support of KIT and GIS students. BCI Trust has entered into an MOU with KIT, and accordingly it has provided the requisite land at the prime location of Bhubaneswar in the area of Patia. These apart, the KIT will also bear 40% of the cost of the infrastructure of the proposed campus of 1.5 lakh square feet area. BCI की उक्त योजना पहले किसी न किसी वजह से मूल रूप ना ले सकी, परंतु आखिरकार एक महान दूरदर्शी शिक्षाविद, लोकसभा के माननीय सदस्य और KIT और GIS के संस्थापक डॉक्टर अच्युता समंता जी से परामर्श के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों ने फैसला लिया, प्रस्ताव पारित किया कि KIT विश्वविद्यालय के सहयोग और समर्थन में उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की स्थापना की जाएगी। BCI ट्रस्ट ने KIT के साथ एक करार एग्रीमेंट किया है और तदनुसार KIT ने पटिया भुवनेश्वर में आवश्यक बहुत ही बहुमूल्य व उपयोगी भूमि प्रदान की है। इसके अलावा 1.5 लाख वर्ग के प्रस्तावित परिसर के बुनियादी ढांचे की लागत का 40% भी KIT विश्वविद्यालय वहन करने को राजी हुई।
There is no doubt that the establishment of IIL will have far-reaching ramifications in the field of legal education by reinforcing the position of the state of Odisha and India in the map of global education. It would be a great achievement and pride for Odisha in particular and the country in general. इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च संस्थान वैश्विक शिक्षा के मानचित्र में पूरे भारत खासकर उड़ीसा राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करके कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक प्रभाव डालेगी। यह संस्थान विशेष रूप से उड़ीसा और सामान्य रूप से पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। IIL will administer and run various programs for continuing legal education, professional skill development programs, refresher courses, learning courses for alternative dispute resolution methods, that is mediation and conciliation, under various centers of learning. Itself undertake research in all aspects of law, justice and social development. Indian Institute of Law continuous legal education निरंतर विधि शिक्षा प्रोफेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिफ्रेशर कोर्स और लर्निंग कोर्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से संबंधित कायदे और तरीकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं संचालन करेगी। मध्यस्थता और सुलह सीखने और सिखाने के विभिन्न केंद्रों के तहत यह कानून न्यायिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं को में अनुसंधान करेगा और इसे प्रकाशित और प्रदर्शित करेगा। To establish one institute of national importance to cater to the needs of the entire law teachers of the law schools in the country and also the advocates in the country. अभी तक लॉ टीचर हो एडवोकेट हो मेरा जितना जानकारी है वो लोग के लिए अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं था। तो बातम्स ऑफ इंडिया थॉट इन दिस लाइन एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग दिस थिंग्स जिसमें इट विल हेल्प द लॉ टू द ऑल लॉ टीचर्स एंड ऑल्सो द एडवोकेट्स टू गेट द ट्रेनिंग एंड ऑल थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डेफिनेटली इट विल also directly help all the law students of all law schools in the country. You are asked. Thank you. Thank you, sir. भैया BCI all members. मैं सभी से सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर अच्युत सामंत को और BCI ट्रस्ट को कि इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उड़ीसा में, खासतौर पर कहा जाए तो अभी जैसा कि हमारे सहयोगी उन्होंने बोला था कि डॉक्टर अच्युत सामंत ने हमारे भुवनेश्वर के अंदर या उड़ीसा में ट्राइबल्स बच्चों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कितना काम किया है, या यूँ कहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अच्युत सामंत ने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो यहाँ पर जो सवाल है कि इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी किस प्रकार से आप इसका फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि किस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ना केवल अपनी यूँ कहा जाए कि जो ना वो कोई किसी प्रकार का उनसे कुछ पैसा लिया जाता है या फ्री शिक्षा और फ्री खाना, फ्री रहना, इस तरह की सब चीज़ें जो है उनको प्रदान की जाती हैं। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में नए जो हैं लॉयर्स या कहिए जैसे कि अभी बताया गया कि नए प्रकार के जो हमारे जितने भी वहाँ पर टीचर्स हैं, लॉ टीचर्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा या उनकी जो शिक्षा जो है उनको प्रदान की जाएगी ताकि वो बेहतर समाज या बेहतर जो है वकील, बेहतर जज जो है वो दे सके हमारे समाज को। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस के बच्चों को भी उसकी सुविधा प्रदान हो पाएगी? देखिए, आपको धन्यवाद देता हूँ और जो कंसर्न पड़ा हुआ है, आपका क्वेश्चन जो पूछे उसका माध्यम से मैं माननीय चेयरमैन BCI जी को भी आभार व्यक्त करूँगा। ये सब वो अपना प्रेस रिलीज में बोले कि हम लोग ने सब कार्यक्रम को देख के हम लोग कन्विंस हुए कि एक काम को भी वहाँ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आप जो पूछ रहे हैं, ये IIL है, जो लॉ टीचर है, एडवोकेट है वगैरह, इस सबको
और भी एनहांस करने के लिए वो लोग का क्वालिटी सब कुछ ये बना है। तो किस के बच्चे जो है डिफरेंट बॉल गेम है, वो तो आराम से पढ़ रहे हैं, लॉ स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सब जगह में पढ़ रहे हैं। तो इसका अंदर जो भी आएगा, वो किस का बच्चा हो या कोई दुनिया का भी लॉ टीचर हो, तो वो जरूर इसका सुविधा मिलेगा उसको। थैंक यू। किसान बिल छोड़ दीजिए। अभी 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 लॉयर्स और लॉ टीचर्स पे हम लोग आए। बट जो है देखा जाए तो जैसे कि किसान बिल के बारे में बात करें तो है तो हमारे अभी IIL के बारे में ही बोलेंगे और किसी के बारे में नहीं। अभी थोड़ा वो चूंकि पॉलिटिकल हो गया इसलिए उसमें बोलना उचित नहीं। अलग से ले लीजिए। जी चलिए इस IIL के बारे में यहाँ अगर पर बात नहीं। करें तो जैसे इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जो है, और इसमें जैसा कि कीट की तरफ से आपको इतनी बड़ी भूमि प्रदान की गई है, और आपने बताया कि पूरे देश में ही कहा जाए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उड़ीसा से ही जो है जो बच्चे हैं वो कीट में पढ़ने के लिए आते हैं। नहीं, पूरे देश से, पूरे विदेश से हाँ, भी, विदेश से कई भी आए। विदेशों से जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो इनको जो है और किस प्रकार का बेनिफिट जो है मिलने जा रहा है BCI की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, हम BCI को लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का ये है, और प्रोफेशन को भी रेगुलेट करते हैं। टीचर्स का स्टैंडर्ड, टीचर्स के नॉलेज का, एक्विपमेंट का, उसको भरपूर होना चाहिए, तभी वो अच्छा स्टूडेंट, अच्छा वकील प्रोड्यूस कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। LLM की डिग्री पहले जो स्थिति थी, अब यहाँ ओपनली कहना उचित नहीं है। आप सब लोग को मालूम है कि कैसे बहुत से इंस्टीट्यूशन LLM की डिग्री दे रहे थे, तो उससे हमारे टीचिंग का जो स्टैंडर्ड था वो बड़ा गिरा हुआ था। तो पहले तो हमने ये सोचा कि हम पहले टीचर्स को ट्रेन करें, टीचर्स को पहले हम उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए कोई कदम उठाएं। तो IIL का जो हम इसकी स्थापना करने जा रहे हैं, पर्पस हमारा प्राइमरी वही है कि हम टीचिंग के स्टैंडर्ड को ऊंचा करें। फिर कुछ यंग लॉयर्स जिनको माने वो सुविधा नहीं हो सकी, बहुत अच्छा सीनियर का ऑफिस नहीं मिल सका, बहुत अच्छा कोई नेशनल लॉ स्कूल नहीं मिल सका, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज नहीं मिल सका, तो वैसे वकीलों को, उनको भी हम शुरू के 3-4 महीने का ट्रेनिंग देंगे, और उसको धीरे 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 हम कंपलसरी करेंगे कि जो भी लॉ का स्टूडेंट वो पास करता है और इनरोल होता है, उसको कम से कम 8 या 10 हफ्ते की ट्रेनिंग ज़रूरी होगी 5 साल पे। ये हमारे एजेंडे में है, हम लोग इस पर ये कर रहे हैं कि वैसी ट्रेनिंग हम कंपलसरी करें। लेकिन IIL में हम वो ट्रेनिंग देंगे, अच्छे वकील प्रोड्यूस करना, अच्छे लॉ टीचर्स प्रोड्यूस करना, ये हमारी मंशा है और यही हमारा ऑब्जेक्ट है। जी, इसमें आप एक और बात बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि टीचर्स को जो है, लॉ टीचर्स को जो है अच्छा बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऐसे में जो उनको प्रोफेसर, जो लॉ प्रोफेसर्स हैं या जजेस हैं, वो किस प्रकार के जजेस जो है उनको टीच करेंगे? क्योंकि अगर टीचर्स को पढ़ाना है तो हमें और बड़े लेवल के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें जो है की जो है जानकारी दे पाए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये है कि लॉ के प्रोफेसर्स, लॉ डीन्स, जिनको अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है पढ़ाने का, अच्छे टीचर्स, मैं समझता हूँ कि जो नोटेड लॉ टीचर्स हैं, सब लोग जानते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चूँकि बहुत सा क्लिनिकल कोर्सेज होता है, क्लिनिकल कोर्सेज CRPC है, IPC है, CPC है, ये क्लिनिकल कोर्सेज हैं। इनको क्लासरूम टीचिंग से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना उस चीज़ को समझा सकेगा वो क्लासरूम करेंगे, वो खुशी से आएंगे, उनको कोई तनख्वाह इसके लिए नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम पे हम जिसको आग्रह करेंगे वो आएगा, वो अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसी पर्पस से हम लोगों ने IIL की संस्था